The challenge which you said is quite universal and well known. बिल्कुल ही बिल्कुल उसका जो आंसर है, जो चैलेंज का सॉल्यूशन जो आप ढूंढ रहे हो, वो पार्टली WCM की फिलॉसफी एम्ब्रेस करने में है. There are no easy solutions. There, as I said in my discussion, no magic pill. I wish there was. It's about a relentless pursuit of excellence on variety of platforms. Some things you will know, some things you won't. You need help, whatever. But one will have to work on a larger aspect of man, machine, process, quality. It's not singular in nature. I wish I could tell you, okay, just do this and this happens. It is first. It starts with you accepting the fact that I am here, wherever you are, embracing WCM, lean manufacturing. There are tools available, there are systems available, there are processes available. The problem that you face today is you are young in the business. I mean, you just, and with due respect, unless you don't work on these parameters and keep relentlessly pursuing them, you will not get to the competitive level where you will have the consumer respect. You're talking of Bangladesh, you're talking of Vietnam. They didn't happen in a day. They adopted this 15 years ago or 20 years ago, and they are reaping the benefits. Correct. And what the next slide, this slide is also going to be of immense importance and will answer a large part of your question. Just bear with me for 10 minutes. Yeah, you can start. I'll start? Yes, sir. ये OEE, ओके, बिफोर ये शुरू भी करता हूँ, मेरे जो मित्र हैं यहाँ पे उनसे सिंपल बेसिक सवाल है. एज अ फ्रेंड, OEE वर्ड से कितने लोग वाकिफ थे इसके पहले? हाथ ऊपर करें, इस मीटिंग के पहले. किसी ने सुना हो, किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा हो, किस यार दोस्त से जिक्र हुआ हो कि यार OEE? नहीं? ओके, फेयर इनफ. आई मीन जस्ट अ वेरी जनरल क्वेश्चन. तो बेंचमार्किंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडस्ट्री को समझने के लिए कि हम कहाँ हैं किसी भी लेवल पे. सेम वे जो हाई हैवी केपेक्स इंडस्ट्री है, जैसे टेक्सटाइल, इसमें काफी लागत लग जाती है. डाइंग यूनिट्स इंपोर्टेड आप लगाते हो, 200 लूम, बड़ा प्लांट. तो जो भी हैवी केपेक्स इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गई, हैवी केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई. मैं गारमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ. गारमेंट इज अ लो केपेक्स player compared to these investments, 200, 250, 500, 1000, 2000 करोड़, whatever. उस इंडस्ट्री या इंडस्ट्रीज को मेजर करना वर्ल्ड लेवल पे, उसका एक मेट्रिक है, एक ही मेट्रिक है, एक ही, वो है OEE. उसका फुल फॉर्म है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस. इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, of measuring manufacturing productivity. तो वो एक अपने आप में एक अमेजिंग नंबर है, और वो नंबर डिराइव कैसे होता है उसके बारे में हम 2 मिनट बात करेंगे. और आज मेरे दोस्त भाई बहन सबको मैं एक एक्चुअल, हमने पिछले 5-6 सालों में, 8 सालों में 5 बड़ी टेक्सटाइल ग्रुप्स, मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, जिसमें से 2 गुजरात के थे, एक हिमाचल का है, एक साउथ की मिल है, मिल्स, प्रॉपर मिल्स. उनका OEE का एक एक्चुअल मिल का मैं केस स्टडी भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. तो आपको एक बहुत अमेजिंग इंसाइट मिलेगा, व्हाट गोस, वेयर वी स्टैंड, एंड देन व्हाट डू वी डू टू इम्प्रूव. राइट. सो OEE इज, measuring OEE is a manufacturing best practice, number 1. By measuring OEE and the underlying losses, you will gain important insight on how to systematically improve your manufacturing process. Your improvement starts from the fact that you know that there is scope of improvement and where to improve. It's exactly like, I mean, everybody I believe is here a parent. Most of them have children in schools or were in schools. And by default as a parent, हमें वो 3-4 mandatory PTA meetings जानी पड़ती थी, right, wrong? स्कूल से. तो वो PTA मीटिंग में जब रिपोर्ट कार्ड मैम देती थी, उस रिपोर्ट कार्ड से 3 स्टेक होल्डर को पता चलता था कि बच्चे को पता चलता था वो कहाँ पे, हिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, इंग्लिश. टीचर को पता चलता था वो स्टूडेंट कहाँ पे है, और पेरेंट को पता चलता था कि शाम को कितना पीटना है उसको. ठीक है. सो अगर वो रिपोर्ट कार्ड ही नहीं आता तो सभी 3 स्टेक होल्डर अंधकार में रहते.
as simple as that. So OE measures your 3 key factors. Next, it takes into account availability. बड़े केपेक्स इंडस्ट्री में मशीनरीज आर कॉस्टली. कई बार मशीन में देखता हूँ 25 करोड़ का ये है, whatever. तो मशीन की अवेलेबिलिटी अगर नहीं है प्रोसेस के लिए, मशीन डाउन टाइम ज्यादा है, मशीन ब्रेकडाउन ज्यादा है, मशीन का मेंटेनेंस बरोबर नहीं है, अगर मशीन उत्पाद नहीं दे रही है तो उसकी अवेलेबिलिटी डिक्रीज होते जा रही है. तो वो एक स्कोर आ जाता है एंड वी मेजर इट. परफॉर्मेंस, अगर मशीन 1 मिनट में 100 मीटर बनाने का उसका क्राइटेरिया था और वो मशीन 75 मीटर बना रही है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका परफॉर्मेंस का मेजरमेंट क्राइटेरिया आ जाता है. अब अवेलेबिलिटी हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, और क्वालिटी क्या मशीन निकाल रही है. वो फायदा नहीं उस मशीन का कि जो इसका प्रोसेस के बाद पता चले रिजेक्शन है या रीवर्क है. डाइंग यूनिट्स में तो अक्सर ऐसा होता है कि शेड गलत हो गया बायर के मैचिंग स्टैंडर्ड से, अब वो पूरा लॉस है. टाइम का, साइकिल का, पानी का, केमिकल का, वो तो आप रिट्रीव कर ही नहीं सकते हो. सो क्वालिटी का एक फैक्टर. तो ये 3 फैक्टर को मल्टीप्लाई करके परसेंटेज फॉर्म में ओई का स्टैंडर्ड एक फैक्ट्री का पता चलता है. ओके, नेक्स्ट, जो 6 बिग लॉसेस होते हैं इस फैक्टर्स में, अवेलेबिलिटी के अनप्लान्ड स्टॉप्स, प्लान्ड स्टॉप्स, परफॉर्मेंस के स्मॉल स्टॉप्स, स्लो साइकिल्स, क्वालिटी, प्रोडक्शन रिजेक्ट्स, स्टार्टअप रिजेक्ट्स, ये की फैक्टर्स है ऑफ अ प्लांट. ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओई. मैं नहीं चाहता हूं कि आपको कल कहीं आप दोस्त के साथ बैठे और कोई ये सवाल पूछे, यार ओई क्या है बता, तो आप बताने के योग्य बन जाओ. तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओई से मैं शुरू कर रहा हूँ. अब ज्यादा समय ना लेके, एक बहुत ही बड़ी टेक्सटाइल ग्रुप है, गुजरात का ही है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका हमने ओई का, उनके चेयरमैन से मेरी मुलाकात हुई. उन्होंने भी नहीं सुना था, वो इस टेक्सटाइल बिजनेस में कुछ 1960 से है, 3rd जनरेशन इन बिजनेस. उन्होंने ओई के बारे में नहीं सुना था. दिल्ली एयरपोर्ट पे ऐसी चांस मुलाकात हो गई, हम लाउंज में बैठे थे, दोनों की फ्लाइट लेट थी, तो बात से बात चली, तो इंटरेस्टिंग डिस्कशन, टेक्सटाइल ये वो. तो उन्होंने मुझे अहमदाबाद इनवाइट किया, हम गए, और फिर वहां से व्हाटएवर. सो अब मैं आपका समय ना लेते हुए, लेट्स जंप टू एक्चुअल ओई वर्किंग्स एंड हाउ इट हैपेंस. नेक्स्ट, कंपनी का नाम अभी मैंने गूगल डेनिम रखा है. गूगल मेरी फेवरेट कंपनी है और हम सबकी है. सबसे पहले ओई में एक फैक्टर हम मेजर करते हैं, वॉइस ऑफ कस्टमर. कस्टमर आपको क्या मार्क्स देता है, वो आप अपने आप को तो 100 on 100 दोगे ही दोगे. हर आदमी, अगर मैं मेरा क्वेश्चन पेपर मेजर कर रहा हूं तो आई एम ऑलवेज राइट. कस्टमर आपको किस पॉइंट पे, तो वो एक स्कोर बोर्ड बनता है. नेक्स्ट, उसमें उस मिल्क की या उस ग्रुप की क्या 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 कितने डिफेक्ट्स, हमने उनके कस्टमर से बात की, उनके डिस्ट्रीब्यूटर से बात की, उनसे फैक्ट्स लिया, उनसे डेटा लिया कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम्स आती है. जैसे कई बार हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट वाला आपको एक पर्ची देता है कि आपको फूड कैसा लगा, एम्बियंस कैसा लगा, सर्विस कैसी थी वगैरह, तो आप उसको मार्क्स देते हो. सो दिस वाज एन एक्चुअल डेटा. ये तकरीबन 7 महीना, ये 5 या 6 महीना ये मुहिम चली. सो वॉइस ऑफ कस्टमर स्कोर एक आ जाता है, उससे हमें पता चलता है कि कस्टमर कंपनी को कितने रैंकिंग दे रहा है. 1 on 10 में 6 दे रहा है, 5 दे रहा है, और व्हाटएवर. नेक्स्ट, वो कस्टमर के नाम भी थे, उन्होंने क्या क्या बोला. So this, I'm just not, the detail is not important, the process is important, so I'm running you with this. Next, ये डिस्कस हो गया. नेक्स्ट, सो इनका पहला जो प्रोसेस था, बॉल वार्पिंग. बड़ी मिल थी, तो हमारी टीम 3-4 इंजीनियर्स वहाँ पे स्टेशन हो गए. कंपनी प्रोवाइडेड एवरीथिंग, वेरी गुड पीपल टू पर्सनली. तो ये डेटा कलेक्ट हुआ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 मंथ का. ओके, सो डे वाइज डेटा है उनका. मशीन का अवेलेबिलिटी क्या था, उसका स्कोर आया, उनका प्रोडक्टिविटी क्या था, उनका स्कोर आया, और उसका क्वालिटी का रिजेक्ट्स क्या था. क्वालिटी का रिजेक्ट्स हमने 10% स्कोर माइनस कर दिया था बेस्ड ऑन क्वालिटी फैक्टर्स. तो क्वालिटी वेयर स्टैंडर्ड रेटिंग में 90% अक्रॉस ऑल पैरामीटर्स. ठीक है.
सो बॉल वार्पिंग नेक्स्ट का जो समरी आया कि कितने ब्रेक्स हुए, कितना डिफेक्ट्स आया, कितना टाइम वेस्ट हुआ, कितना चेंज ओवर था, कितना क्या था, ऑल दिस फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स, डेटा, एक्चुअल वर्किंग इनसाइड द मिल. नेक्स्ट, सो ये पता चला कि बॉल वार्पिंग जो सेक्शन है उनका, उस सेक्शन का ओई है 32%. बॉल वार्पिंग एक सेक्शन है, उसका अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त अवेलेबिलिटी वाज दिस, परफॉर्मेंस वाज दिस, क्वालिटी इज दिस. 77 into 47 into 89 divided by 10,000 will come to 32%. Because 77 is a percent, so 000 if you add it works to 10,000, divide that, so it is 32%. Next, dyeing, उनका dyeing का plant था, same working for the dyeing months, facts, figures, number, data, maintenance, stopover, everything, planned shutdown, unplanned shutdown. Next, तो डाइंग यूनिट का उनका आया ओई 68%. जहाँ लास्ट का जो नंबर है आपको दिख जाएगा ओई. करेक्ट. नेक्स्ट, एक उनका प्रोसेस है लॉन्ग चेन बीम एलसीबी. सेम थिंग हैपेंड फॉर एलसीबी. डाटा नंबर्स डेटा. सो एलसीबी का आया 22%. नेक्स्ट, साइजिंग. These were sequential processes for it to move. So sizing, all facts, figures, numbers, data pointed out to next 20%. Then was weaving. They had some amazing looms, newly invested, whatever. So we took everything, speed of the machine, number of machines installed, and all the workings were there. Next, बहुत ज्यादा डेटा है और बहुत ज्यादा ये है. सो आई एम जस्ट कमिंग टू द नटशेल, एंड एट द मोमेंट टाइम भी नहीं है कि उसमें बहुत डीप जाए. उसके लिए शैलेश भाई देखो मेरे को एक बार फिर इनवाइट करना पड़ेगा सूरन दो चौक खिलाने के. नेक्स्ट, सो वीविंग का ओई समरी आया उनका 70%. देन वाज सिंजिंग 40%, मर्सराइजिंग 33. There's another process, desizing 7%, टेंसर. ये सारे प्रोसेस से तो सब वाकिफ होंगे जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हमारे बंधु हैं. 34, फिनिशिंग 41. दो फैक्टर्स इसलिए आपको नजर आ रहा है कि एक आइडियल कैपेसिटी के साथ उन्होंने बोला कि हमने कैपेसिटी बढ़ा दी है बट वो हम नहीं यूज करने वाले, तो उसके साथ भी लो और उसको माइनस भी करो. ऑफ कोर्स लागत तो लग गई थी, बट अगर प्रमोटर ही बोल रहा है कि नहीं ये 10 मशीन में से 2 परमानेंटली बंद है, so we took both the data as per 12 and as per 10 running. So there are some this on that numbers. Overall factory summary कितना आया दोस्त? 20. Less than 30% is the number of the mill. This is one of the reputed mills in the space. Huge setup, no doubt. OEE का benchmark जो है, benchmark scores, जैसे हमने WCM का एक क्वेश्चनर बनाया था, वो तो सब्जेक्टिव था, जिसमें हमने गुड, एवरेज, पुअर वगैरह. OEE में कुछ सब्जेक्टिव ही नहीं है. फैक्ट, फिगर, नंबर, डेटा, प्योर नंबर है, एब्सोल्यूट नंबर, मैथ, पूरा मैथ्स है, and validated by the management teams before we present. 85 and above is world class. Great. Benchmark तो 100 on 100 है. अगर आपका 85 और ऊपर का स्कोर है, जैसे टोयोटा का आप लोगे तो 89, 91 उस लेवल के स्कोर्स होंगे. वर्ल्ड में कोई और भी अच्छी कंपनीज होंगी वो 85 and above क्लॉक करती है. तो यू आर truly hats off, you are the Tendulkar of that area. 71 to 79, you are very good. If you are in the 70s, you are very good. 61 to 69, you are good. You are good. 51 to 59, you are average. Okay. Less than 50, result आएगा. Why are you into manufacturing? Choose another business.
तेंदुलकर of Gujarat. Hmm? Is it Tendulkar of Gujarat? This mill. क्या This mill is the Tendulkar of Gujarat और फिर भी वो less than 50 है. मतलब नाम में और शान में यस, बट काम में जो आंकड़े झूठ नहीं बोलते वो ये है। और सिर्फ ये नहीं है, जो 6-5 जो बड़ी मिल्स मैक्सिमम स्कोर ऑफ इंडिया, एक ही साउथ की मिल ने 47 टच किया ऑन ओई। That's the reality of benchmarking of textile industry. It cannot be more detailed than that. Trust me. So what does this tell us? ठीक है, इसको ये कर दें। Are we clear so far, guys? I hope this was interesting. Back audience से आवाज ही नहीं आ रही यार, क्या मतलब? This tells us that we are far behind the global average. There you go. Exactly. We need to really buckle up. You need to really buckle. अब resources है, जगह है, इन्वेस्टमेंट्स है, मशीन है, बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट डाली है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, बट ग्लोबल लेवल पे कैन नॉट कम्पीट। कॉस्ट नहीं मिलेगा। इतने पुअर ओई पे आप कॉम्पिटिटिव फैब्रिक बना ही नहीं सकते हो। और ये मेजर नहीं करते तो इल्यूजन बना रहता कि we are good. Absolutely. When we spoke to the board, they said we are the best in business. जब स्टार्टिंग की ओपनिंग मीटिंग हुई, जो की मेंबर्स थे चेयरमैन के साथ, जो उनके दाएं बाएं CFO एंड ऑल, some of them laughed कि what nonsense. So the fact, brother, is very clear. On WCM score, India stands on a below average category, what we understand. On textile sector, if ये 5 बड़े हाथी जिनके पास रिसोर्सेज है, अगर उनके नंबर्स है, तो जो कंपनी से कैलकुलेट ही नहीं कर रही है, उनके कुछ 60, 70 या 80 तो नहीं होंगे। आई मीन जस्ट अ बेसिक असेसमेंट। Very difficult. What is the reason behind it for India? रीजन ये सर, रीजन एग्जैक्टली क्या है पता है? ये ओई टॉपिक के पहले मैंने एक सवाल पूछा था कि कोई भाई या कोई दोस्त ने ओई सुना भी है, किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया। करेक्ट। जिस गेम में आप हो, उस गेम का मापदंड ही आपको नहीं पता है। आप अगर क्रिकेटर हो तो आपको मापदंड पता है, कितनी सेंचुरीज बनाना है तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। आप अगर टेनिस खेलते हो तो आपको पता है कितने ग्रैंड स्लैम्स जीतने रॉजर फेडरर और रफाल नडाल को हराने के लिए। पता तो है आपके स्पोर्ट का, राइट? जिस बिजनेस में आप हो और जो वर्ल्ड मेजरमेंट है, वही मैंने पैदा नहीं किया, वही तो 100-50 साल से गिनती में है। पर मैं भी शायद अपने को अपनी जो प्रोडक्ट है ना उसकी कंसिस्टेंसी नहीं है इंडिया में। उसके कुछ भी मापदंड हो सर, आप उसको कुछ भी रीजनिंग दे, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको पता होता आपका ओई क्या है, तो 30 है सपोज, एक सेकंड के लिए आपको पता होता, आई वुड हैव गिवन यू 80 मार्क्स ऑन दैट कि पता है। फिर आप बोलते कि इसके ये 3 रीजन है। हवा का तापमान बढ़ जाता है तो ओई गिर जाता है, वो भी एक रीजन है। आई मीन एज अ फ्रेंड आई एम जस्ट टेलिंग यू, पॉइंट आई एम मेकिंग एज इंडियन एंटरप्रेन्योर्स इन द टेक्सटाइल स्पेस इन सूरत, विच इज अ टेक्सटाइल हब, $multi-million इन्वेस्टमेंट। सर ने जो प्लांट बताया CETP का 2200 करोड़, टू मेगा थिंग्स हैपनिंग। इफ द इंडस्ट्री इज नॉट इवन मेजरिंग, हाउ इज इट गोइंग टू इंप्रूव? दैट इज द क्वेश्चन आई लीव यू विद। यू डोंट नीड टू गिव मी एनी आंसर। मैं तो दोस्त हूं, मैं तो 30 में भी खुश हूं आपके लिए, और 80 होगा तो और नाचूंगा इधर। We need that direction. We need that direction. Exactly. This topic is not about being judgmental. Who am I to be judgmental? No one. I'm your friend. I love you anyway. पहले तो जानना है कि कहाँ बैठे। पहले जानना है कहाँ बैठे। ये मुहिम ही इसलिए शुरू कर रहे हैं हम कि हम सोचे, हम समझे। हम में से हर बंदा यहाँ पे एक वेल मीनिंग एंटरप्रेन्योर है। वो रात को किताब खोलेगा। आज डॉक्टर अगर बनना है तो 6 साल की स्टडी है, 10 साल का प्रैक्टिस है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या स्टडी है, क्या प्रैक्टिस है? बाप के पैसे ले लिए, बैंक के पैसे ले लिए, कुछ कैपिटल थी डाल दी। I mean, not that I love manufacturing. I'm just generally saying. So this is matter for study. This is matter for understanding. This is matter for graduation. If we want to be the world's best, we'll have to learn from the world. Right, wrong, guys? Right. That's it. Nothing else.
सो दिस कंक्लूड्स ओई. अगर अच्छा लगा हो तो तालियों की गूंज सुनाई देनी चाहिए. बाकी आप नहीं मार रहे हो ताली, अच्छा मार रहे हो, वेरी गुड. फोटो ले ले. Even if that 29 can go to 35, it is good, no? फैंटास्टिक सर. So they've gone 20% up. They've gone बिल्कुल. It's a journey. It's a journey. Even if it goes to 50, you get into the above 50 class, you are proud. And everything changes. सर आप कॉम्पिटिटिव हो जाते हो, आपका वॉइस ऑफ कस्टमर स्कोर बढ़ जाता है, आपका कॉस्ट क्वालिटी सब इंप्रूव हो जाता है. Perfect. नेक्स्ट ये बंद कर दो.